हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रोग्राम। समझेंगे अच्छे से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। पहले देखते हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, एक वेरिएबल के लिए वो क्या काम करता है। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं लॉजिक का पार्ट। अपना चैनल का यही मतलब है, पहले लॉजिक को समझेंगे, फिर कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले ही जाके कोड कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, पहले लॉजिक को समझते हैं, खुद बिल्डअप करते हैं लॉजिक, और फिर बाद में कोड करना चालू करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लॉजिक पार्ट ओवर हियर। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्री and what is meaning of post? So here I have a pre increment, I have a post increment. Sorry, I have a post increment. Okay, so what is a pre increment? Pre मतलब पहले, post मतलब बाद में। इतना समझ गया? ठीक है। So pre increment, so pre increment is denoted with, if I take an any variable, let's take a variable as a. Okay, so pre increment would be first a. So this is pre increment. If I want to write a post increment, means I want to write a post increment, so I will have a and then plus plus. This is called a post increment, this is called a pre increment. Okay, now how we will see how this will act in our code, in our logic. Okay, let's take a variable 10. Okay, let's take a variable 10. Now I want to do a plus plus. I am taking another variable as b. I am assigning the value to b. Okay, so what happens in pre-increment is that when we put pre-increment, it first increments the value and then assigns the value to b. You got it? It first increments the value and then assigns the value to b. Okay, so here what will happen? A will first assign the value, increment the value, and then it will assign the value to B. So now here A will become 11 and B will become 11. Okay, now we will see what is a post increment. Let's take a value as C. Okay, we add A plus plus. Now here what will happen? It will first assign the value to C. It will first assign the value to C, and after that it will increment the value. Okay, again I am telling. It will, in what happens in post increment, it will first assign the value and after that it will increment the value. That is called post increment, afterwards increment. Okay, so here C will become first. Now we have a value as 11 because it has, okay, let's take something value here as d equals to 10. Okay, let's not use that same variable. We will use that same variable in logic. We will debug the every part of the code over here. Okay, now let's take d. So now d will become, sorry, now c will become 10 because it is first assigning the value, and d will become 11. You got it? Because it is after assigning the value, it incremented the value. Correct? You got it? Okay. Now let's make it very simple. It's not a rocket science or anything. Let's make it very simple, simple to the base. Okay. Now what we will take. Okay. Now let's do.
with another part. We have some operators also. Okay, what is that? Let's take an int uh, e. Okay, let's take a variable int e. Okay, now what we do, we see sometimes this part plus. Okay, this plus, and I assign a value a over here. Okay, I give this int e as 10 again. So what this denotes? What's this denotes? This denotes is as I am adding a variable to a variable. Means I am taking a value as e as 10 and I have a value of a as 10. So what I am doing is as adding 10 plus 10, which gives me 20. So value of e will become 20. Okay. Okay. This is the small part of the logic. We will see how we will debug every part of the code over here. We have understood the logic, what is pre-increment, what is post-increment. Same works with minus also. If I add do it over plus, the same works with minus. Pre-increment with minus, post-increment with minus. Okay. Same thing. So let's do not waste the time. We will start coding over here. So let's start with the code. Okay. I will create a class name new project as pre-increment and post-increment. Okay. New window. Let's create a package over here com.example.app. Okay. Let's create a class pre-increment and post increment. We will debug the every part of the code over here. Okay, let's write public static void main string ar. Okay, let's go with this now. Okay, so let's take a variable simple, we will keep it. Okay, let's take int a equals to 10. Okay, now let's take b. वी विल डू फर्स्ट ओवर हियर प्री इंक्रीमेंट, जो भी हम लोग ने लॉजिक में लिखा है सेम इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. ठीक है, पहले लेते हैं प्री इंक्रीमेंट ए. ठीक है, इंक्रीमेंट करने के लिए देखेंगे पहले प्री इंक्रीमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंगे. यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ बी क्या आ रही है. वैल्यू ऑफ बी मेरी क्या आ रही है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा. सेम मुझे अभी देखना है कि वैल्यू ऑफ ए क्या आई थी. ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा वैल्यू ऑफ ए क्या आई थी. वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए. लेट्स टेक वैल्यू ऑफ ए क्या मुझे आई थी, मुझे प्रिंट करना है. नेक्स्ट, अब मैं जाऊंगा पोस्ट इंक्रीमेंट पे. ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट पे लेते हैं वैल्यू ऑफ इंट सी लेते हैं. ठीक है, इंट सी में मैं चेक करूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट. तो पोस्ट इंक्रीमेंट कैसा होता है, ए प्लस प्लस. ठीक है, मैं इसको बाद में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. सिस्टम डॉट इसका भी प्रिंट करके देखेंगे. सिस्टम डॉट वैल्यू ऑफ सी क्या है, प्लस सी. नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. मैं यहाँ पे चेक करूंगा वैल्यू ऑफ ए क्या था. अभी दोनों भी मुझे चेक करना है. ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों का भी वैल्यू चेक कर लिया. अब मैं कुछ और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ जो. ठीक है, तो अब देखते हैं a इक्वल्स टू ए प्लस प्लस क्या होता है. चलो प्लस प्लस ए क्या होता है, तो इधर मैं ले लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए. मैं चेक करूंगा यहाँ पे सेम मैं चेक करूंगा
सिस्टम डॉट, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा वैल्यू ऑफ ए प्लस प्लस क्या होता है, मतलब क्या पोस्ट इंक्रीमेंट मेरा क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे मैं चेक करूंगा वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ए को बोल रहा हूँ पहले इंक्रीमेंट कर और फिर वैल्यू अपनी चेंज कर दे, उसके अंदर डाल दे। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही वैल्यू ये ए रहेगी उसकी, बट उसको पहले असाइन करना है उस एक नए वेरिएबल में। तो नया वेरिएबल उसको नहीं मिला है, तो यहाँ पे वैल्यू वो चेंज नहीं करेगा, सेम ही वैल्यू वो प्रिंट करेगा यहाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और जो आपको मैंने ये वाला लॉजिक दिखाया था, ये वाला प्लस वाला, वो ऑपरेटर से भी एक बार देख लेंगे कैसे करते हैं। एक वेरिएबल ले लेंगे, समझो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सेम, मेरा वेरिएबल बी ले लेता हूँ जो ऊपर असाइंड है। ठीक है, उसको प्लस करेंगे ए के साथ, यहाँ पे प्लस ए के साथ प्लस कर देंगे, और ए के साथ प्रिंट हटा देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे वापस वैल्यू कर देंगे प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ बी स्पेस बी। ठीक है, अब फटाफट से इसको डीबग करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वैल्यू कैसी कैसी आती है। मैं एक डीबग पॉइंटर यहाँ पे लगा रहा हूँ, वैल्यू राइट क्लिक करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको डीबग पे लगा दूंगा, तो ये कोड डीबग होना चालू हो जाएगा। डीबग करते हैं, कंसोल में यहाँ पे भी मिल जाएगा मुझे डीबगर वैल्यू में क्या क्या वैल्यू असाइन हुई है, सेम कंसोल पे भी सारा प्रिंट होते जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, F8 पे, F8 से एक एक स्टेप ओवर होता रहता है। मैं F8 क्लिक करूँ, F8 पे क्लिक करूँ या इधर क्लिक करूँ, एक ही बात। वैल्यू असाइन हुई यहाँ पे 10। ठीक है, सेम। अब क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं वैल्यू इंक्रीमेंट हुई एंड देन वैल्यू असाइन हुई। वैल्यू इंक्रीमेंट हुई फिर बाद में वैल्यू असाइन हुई। तो अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए इज 11, वैल्यू ऑफ बी इज 11। अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, कंसोल पे आ गया वैल्यू ऑफ बी इज 11, वैल्यू ऑफ ए इज 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट अभी वैल्यू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 11, आप अगर चेक कर सकते हो, मैं होवर करता हूँ, ए की वैल्यू है 11। अब क्या होगा, जब मैं सी में वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, तो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर बाद में इंक्रीमेंट होती है। प्री वैल्यू में क्या होता था, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी और बाद में उसको असाइन किया जाता था। यहाँ पे पहले मैं असाइन करूंगा और फिर इंक्रीमेंट करूंगा। तो पहले असाइन करने से वैल्यू सी की 11 ही रहेगी, बट वैल्यू ए की चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू सी की 11 ही रही और वैल्यू ए 12 हो गया, ए का वैल्यू 12 हो गया यहाँ पे। अब ए का वैल्यू यहाँ पे 12 है, बी का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, सी का वैल्यू 11, ए का वैल्यू 12 हो गया यहाँ पे। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट ये क्या करेगा, अब ए की वैल्यू है, वो ये हम लोग प्री इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ए की वैल्यू हो गई 13, क्योंकि उसने पहले इंक्रीमेंट किया बाद में वैल्यू को असाइन किया। ए की वैल्यू हो गई 13। अब यहाँ क्या करेगा, पहले पहले असाइन करेगा। तो असाइन करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है नया वेरिएबल, तो पहले असाइन किया और बाद में वैल्यू मैंने वैसी की वैसी रखी। जो वैल्यू 13 थी पहले है ए की, वही पहले वैल्यू 13 वो यहाँ पे रखेगा। एक वैल्यू प्रिंट हो गई 13। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, अब वैल्यू है यहाँ पे 13, बी की वैल्यू है 11। तो ये सिर्फ प्लस ऑपरेटर है जो यहाँ से प्लस कर देता है, वो प्लस ऑपरेटर है। मतलब क्या, ये ए प्लस बी है, ये प्लस ऑपरेटर ए प्लस बी, ये सेम ए प्लस बी, मतलब यहाँ से मैं प्लस उसको भेज रहा हूँ। ये हो गया 24 का, ए की वैल्यू थी 13,
सी बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू अभी चेंज हो गई, बी की वैल्यू पहले क्या थी, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं 11, तो 11 प्लस 13 इज 24, तो वैल्यू हो गई 24। ठीक है, ये होता है ऑपरेटर्स का खेल। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले लॉजिक को समझते हैं फिर बाद में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना, आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर जरूर करना आपके दोस्तों को कि वो और अंडरस्टैंड करे, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्या नेक्स्ट वीडियो कौन सी इस पे चाहिए। टिल देन, चलो बाय।